व्यूअर्स हमारे साथ हैं काउंसलेट जनरल तरकिया जमाल सांगू साहब, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. Welcome to the Zabist, and it's Thank going you. to be a first Pakistan's university where we are having a Turkish food festival. So how do you find the food festival at Zabist? Yeah. So first of all, I would like to thank the Zabist University for organizing the first Turkish food festival here at the campus of Zabist University. We are very happy to collaborate, to work with the Zabist University. The Turkish Alumni Association organized in cooperation with Zabist University this food festival. This is not going to be the first one, but it's going to be an annual function. Inshallah, we will have the second one as well. So we were very pleased to organize here at the Zabist University, and then we prepared, several Turkish Turkish sweets. Turkish cuisine is very famous all over the world and as well as in Pakistan. So we are very happy to collaborate with Zabist University. Sir, are there programs and initiatives for fostering the students and the collaboration for the both countries, Pakistan and Turkey? Sure. We have we invested in Pakistan in the field of education. We believe in education. We believe in knowledge. We believe in science, in technology. With that in mind, we invested in Pakistan. We have 28 Pak Turk Marif schools all over Pakistan. 28. We have more than 13,000 students. Then we have also the Turkish government is providing scholarship for Pakistani students. It's a comprehensive scholarship. That means the travel expenses, accommodation, school fees, and stationeries, books, all covered. Last year we provided 189 scholarship for Pakistani students for all levels, graduate, undergraduate, then also PhD, postdoc, and research. So we'd like to have as many as possible Pakistani students applying for those scholarships. Sir, how do you feel about this collaboration contribute to understand the both cultures and the history of both countries? We have already excellent relation, brotherly relation. We have very special relation with Pakistan, Turkey. In Turkey, we consider ourselves two countries but one nation. So we have excellent relation. This kind of activities, they will bring our two people together to know each other more and more. And of course, we have a saying in Turkish. The Turkish sweet is very important. Let's eat and then talk sweet. So we have tasted beautiful, delicious Turkish dishes here at the festival. And I would like to have all my brothers and sisters, all the youngsters, the students, they can taste the delicious Turkish food here. Sir, any message? As you know, the Pakistan's youth is the most amazing population. Any message for the youth of Pakistan and the people of Pakistan? Yeah, the message is that the Pakistan is our second home country, second country. So the Pakistani students, they should work hard, study hard, and work for the benefit, for the development of this country. So we have to work and then work for our beloved brotherly Pakistan. Thank you so much for your precious time. Thank you. My pleasure. Thank you. It's honor, sir. So viewers, इस फूड फेस्टिवल के अंदर बहुत ही एजाज़ की बात है कि हमारे पास वहाँ से डेलीगेशंस भी हैं और यूनिस एम्ब्रे के नाम से वहाँ के एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के जो मतलब जैसा कि मैं कहूँगी रिप्रेजेंटेटिव है हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पहला सवाल इनसे ये होगा कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आज तक ऐसा फूड फेस्टिवल नहीं हुआ, तो ये कैसे देख रहे हैं इस फूड फेस्टिवल? Pakistan'da hiçbir zaman böyle bir festivali olmadı. Böyle bir etkinliği olmadı. Evet. Şimdi siz nasıl görüyorsunuz bu etkinliği? Bu evet bir ilk Pakistan'da üniversite eğitimi almış Pakistanlı arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin organize ettiği ve devamının geleceği güzel bir etkinlik. ये तुर्की एलुमनाई की तरफ से की गई पहला इवेंट है जो ऑर्गेनाइज हुआ है फूड फेस्टिवल।
अच्छा सर, कहा जाता है कि किसी भी जगह के बारे में जानना हो, उसके बारे में समझना हो तो उसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आज हम यहाँ आए, नए खाने देखे, लोगों से मिले, तो हमें काफ़ी सारी डिशेस का पता ही नहीं था। इवन हमें नाम प्रोनाउंस करने में भी बड़ी ये कहेंगे मुश्किल पेश आ रही थी। तो टर्किश लैंग्वेज सीखने का क्या तरीक़ेकार है? Diyor ki biz geldik, bir sürü yemekler vardı. Onun isimler bile zordu bizim için. Yani söylemek bile zordu. Yani şimdi Türkçe dili hakkında nasıl öğrenebiliriz? Ne konuşacaksınız? Aslında Türkçe ve Urduca birbirine çok yakın iki dil. Aynı kelimeleri kullandığımız, benzer kelimeleri kullandığımız çok ortak nokta var. नोक्ता पर ये कहते हैं कि टर्किश और उर्दू जो ज़बान है ये आपस में बहुत मिलती ज़बान है और बहुत सारे अल्फाज और बहुत सारी चीज़ें मुमासलत रखती रखती हैं हैं आपस में। रखती हैं Her şeyin başı ilgi ve alaka. हर चीज़ जो है ना वो एक कनेक्शन के बाद आगे बढ़ती है। अच्छा सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे और इम्पोर्टेंट सवाल ये कि जो स्टूडेंट्स हैं जो परसू करना चाह रहे हैं हायर एजुकेशन टर्की में जाकर, तो लैंग्वेज ऑब्वियसली खाने पीने या उठने बैठने तक तो कहीं घूमने के लिए टूरिस्ट सीख ही लेता है, मगर वहाँ पर जाके उस कल्चर में रहने के लिए एक बहुत अच्छा अरसा गुजारने के लिए, इवन उस कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए किस लेवल की हमें जो है वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोग चाइना जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो आइलेट्स वगैरह या गोथे वगैरह जाते हैं। तो इस तरह आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर किस लेवल पे हमें ये सीखनी होगी कि हम वहाँ पे स्कॉलरशिप भी ले सकें और वहाँ पर एडमिशन्स भी ले सकें? Diyor ki Türkiye'ye gidip Türkiye'de eğitim almak için, orada yaşamak için ne kadar Türkçe öğrenmesi gerekiyor? Hangi seviyeye kadar öğrenmesi gerekiyor? Yani orada iyi şekilde yaşamak için. Türkiye'de iyi bir şekilde, rahat bir şekilde yaşayabilmesi için bir vatandaşın, bir Pakistanlı arkadaşımızın en kötü, en az A2 seviyesinde Türkçeyi bilmesi gerekir. टर्की में रहने के लिए किसी भी पाकिस्तानी को कम से कम भी A2 लैंग्वेज तक सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये बिगनर लेवल 2 होता है। अच्छा सर, लास्टली हम ये कहेंगे हम इनके बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और ऑडियंस के लिए इनका कोई मैसेज? Çok teşekkür ediyoruz diyor. Ve diyor ki en sonunda eğer yani sizden Tabii bir ki. mesajınız bizim Yunus- öğrencilerimiz için Evet, Yunus Emre Enstitüsü Türkiye'de kurulmuş. Türkiye'yi ve Türkçeyi, Türk kültürünü tanıtmak amacıyla organizasyonlar ve faaliyetler yapan büyük bir kurum. यूनुस एमरे टर्की में कायम किया गया और टर्किश हुकूमत का इदारा है और ये तुर्की की ज़बान और वहाँ के तहज़ीब और सकाफ़त को दुनिया में रोशनास कराने के लिए बनाया गया है। Dünyanın 70 ülkesine yakın 65 ülkesinde merkezimiz ve eğitim, kültür faaliyetlerimiz devam etmekte. दुनिया के तकरीबन 65 ममालिक में ये इदारा अपने ऑफिस रखता है, वहाँ पे अपने कल्चर को रोशनास करा रहा है, ज़बान सिखा रहे हैं। Karaçi'de 5 ay önce faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız. Şu anda Greenwich Üniversitesi ve Karaçi Üniversitesi'nde protokollerimiz yapıldı. Derslere başladık. Aynı zamanda Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi ofisimizde Karaçi Üniversitesi kampüsü içerisinde açılmış durumda. ये 5 महीने पहले कराची में आए और अभी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में और कराची यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कोर्स करवा रहे हैं और यहाँ पे इनका ऑफिस भी अब कायम हुआ है। Bizim kurslarımızdan eğitim alan insanlar uluslararası geçerliliğe sahip Türkçe sertifika sahibi olabilir. यहाँ से जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यहाँ के इनका जो सर्टिफिकेट लेते हैं वो दुनिया भर में हर जगह वर्ल्ड वाइड इनका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है। Yunus Emre Türk bir Sufi derviş. Dünyaya verdiği mesajla sevgi ve merhamet odaklıdır. यूनुस एमरे जो है वो एक तुर्क सूफी शायर थे और उनका दुनिया को जो पैगाम था वो मोहब्बत का और अमन का और रहमदिली का पैगाम था। Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. अगर हम चाहें, उनका ये मैसेज था कि अगर हम चाहें और चाहें जाएं
तो दुनिया में कोई भी जो है ना वो yani pasmanda नहीं रहेगा. Bu programı, bu fırsatı bizlere tanıdığınız için siz Pakistanlı kardeşlerimize, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. इस प्रोग्राम को हमें इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं कि आपने हमें इतना अच्छा प्रोग्राम और इतना अच्छा दिखाया है. Bizi takip etmeye devam etsinler. हम फॉलो करेंगे. थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह आपसे हम ज़रूर आपको मदऊ करेंगे हमारे पॉडकास्ट में, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी. थैंक यू. थैंक यू. Şükriye. Allah hafiz. अस्सलाम वालेकुम सर. Alaikum salam. How are you doing, sir? Thank you very much. Sir, it's happening first time in Pakistan that the Turkish festival is happening at any university. So how do you find this food festival here in Zabist? This organization is the first time organized by the Turkey alumni. You know that Turkey alumni is the students graduated from Turkish universities. So food is very important for cultural interaction. It is very good opportunity provided by the Turkey alumni, this interaction, cultural interaction. As TICA, we are implementing agriculture project, food project. We supported Pakistan Institute Hotel and Tourism Management. The only significant issue is cultural interaction will be mostly provided by the food interaction. When you come together, sit down in a table, eating something, people are interacting. So Turkey alumni provide this opportunity for Pakistani students, Pakistani people and Turkish people together. Today we are together as brothers, Turkey and Pakistan, and how we come together because of this food festival, Turkish food festival, and this first time, inshallah, will be continuing. Inshallah. Sir, this sort of a collaboration, how do you see give a good contribution to understand each other's culture and the history? When you go to place which you go first, you can check what to eat there. The taste of that food is suitable for you or not. Very true. So when we come to Pakistan, we tested more spicy foods here, but also we tried first the spicy things, but also we try to find less spicy things. So when we go back to Turkey, we will tell our how can I say relatives, our brothers, our friends about the Pakistani foods. Turkey alumni went to Turkey. They brought from Turkish culture from Turkey. Indeed. So they organized this program because of their food experiment in Turkey. Most often we hear that Kurdish say Pakistani is Kurdish and Pakistani says Turkish are Kurdish. So what would be your message for the peoples of Pakistan, especially for the students? Independent from the political issues, economical issues, other issues, Pakistani and Turkish people every time become friends, brothers. So it will continue on forever. So that's why we are saying that Pakistan, Turkey, Zindabad. It is not only a word, but it is a heart-feeling word. So this brotherhood will continue on, inshallah. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सर. सो व्यूअर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं टर्किश फूड फेस्टिवल पे जो होने जा रहा है ज़ैबिस्ट के अंदर, और 100 कैंपस पे मौजूद है और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Aleyküm सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सर, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी के अंदर पहली मर्तबा टर्किश फेस्टिवल हो रहा है. मुझे ये बताएं कि ये क्या क्या लवाजमात है और ये इनका टेस्ट कैसा होता है, क्या कहते हैं इनको? सर इसको तो कुराबी कहते हैं. ये नमकीन होता है, थोड़ा मीठा. ठीक है. तो ये शक्कर पर है सर, तुर्की डिजर्ट. ओके. ये तुलुम्बा. कुलुम्बा. तुलुम्बा इसको बोलते हैं. वो शक्कर पर है सर. वो शक्करपारा. उसको टर्किश में क्या कहते हैं? तुर्की में शक्कर पर है. ये शक्करपारा कहते हैं. शक्कर पर. ये अब आप मुझे ये प्रॉपर सर समझा सीमित सकते हैं? जी बताएं अब. सर ये तुलुम्बा है, तुर्की ओके. स्वीट.
ये शक्करपारा है, ये कुराबे बोलते हैं तुर्किश इसको। ये थोड़ा नमकीन है, थोड़ा मीठा है, तो इसको सिमिट बोलते हैं, सिमित ठीक है। तुर्किश। ये पोचा है तुर्किश। अच्छा, आपका टर्की में वक्त गुजारने का कोई इत्तेफाक हुआ? नहीं सर, तुर्की नहीं, पाकिस्तानी में। अच्छा, तो आप ये बना लेते हैं खुद? जी जी, मैं शेफ़ हूँ। माशाल्लाह। तो किस कदर देख रहे हैं यहाँ का आवाम का रुझान इस फूड के हवाले? माशाल्लाह बहुत लाइक कर रहे हैं ये चीज़ें, तुर्किश स्वीट। ये पहली दफ़ा आए हम यहाँ बहुत लाइक कर रहे हैं ये चीज़ें तुर्किश। सही। अच्छा, इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए, आप क्या कहते हैं इसके बारे जी में? जी, क्यों नहीं होने चाहिए। बहुत मेहरबानी, जज़ाक थैंक यू सर। थैंक यू। सो व्यूअर्स, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि टर्किश फूड फेस्टिवल चल रहा है ज़ैबिस के अंदर, और इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि टर्की की चाय बहुत मशहूर है। तो चाय तो हम पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है, और इनकी और हमारी चाय में क्या फ़र्क है वो जानेंगे हम इस दोस्त से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आसिफ अली। आसिफ अली, हमें ये बताएं कि टर्किश चाय कैसे बनती है और इसकी क्या खुसूसियत है? टर्किश चाय अपनी जैसे कावा कहते हैं ना, तो उनका होता है 2 चनक में। पहले पानी गर्म करना पड़ता है नीचे वाले में, ठीक है, वो गर्म करके फिर इसमें डालेंगे पत्ती में गर्म पानी, ठीक है, फिर इसके ऊपर चढ़ा देंगे। 20 से 25 मिनट रेडी होने में लगते हैं, ठीक। उसके बाद तैयार हो जाता है। फिर आप तकरीबन 30-40 बंदे एक के चेहरा काफ़ी होता है। अच्छा, इसमें कोई खास किस्म की जैसे हम चाय की पत्ती कहते हैं पत्ती वगैरह? यहाँ सिर्फ तुर्की की इस्तेमाल होती है। सिर्फ तुर्की की इस्तेमाल जी हाँ, होती है। तुर्की की पत्ती इस्तेमाल होती है और वहीं से आती है, पाकिस्तान में वो नहीं होता। अच्छा, यहाँ के फूड फेस्टिवल में आप चाय पीने वालों का रुझान कैसा देख रहे हैं? माशाल्लाह बहुत पसंद कर रहे हैं चाय को, और हमारे तो कप ही इतने सारे ख़त्म हो गए। जितने भी गेस्ट आए थे 2-3 बार कप मंगवाए हैं। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू। वेलकम सर। तो कहा जाता है कि टर्किश आइसक्रीम खाने के बाद लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है, मगर उसका टेस्ट ऐसा होता है जिसकी वजह से लोग बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और अपनी लाइफ को या अपनी सराउंडिंग्स को एंजॉय करते हैं। बहुत सारी वीडियोस में हम देखते भी हैं कि एक टर्किश आइसक्रीम वाला जब आइसक्रीम दे रहा होता है तो लोग उसके साथ डांस कर रहे होते हैं। सर, मुझे बताएंगे टर्किश आइसक्रीम क्या है, किस कदर है, और उसमें ऐसी क्या लज्जत है कि लोग नाचने पर मजबूर हो जाते हैं? असल में टर्किश आइसक्रीम जो है बेसिकली जो हमारी आम आइसक्रीम होती है, जलाटो होती है, आर्टिसनल आइसक्रीम होती है, उससे थोड़ी सी डिफरेंट इस तरीके से होती है कि उसका जो टेक्सचर होता है बबल गमी टेक्सचर होता है, थोड़ा उसमें लेस होती है, खिंचाव होता है, तो इसलिए जो है उसमें मतलब उसका टेक्सचर थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है, इस वजह से। और उसका टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क है, वो खा के ही पता चलता है। तो वो जो है और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो इस आइसक्रीम के साथ, इस टर्किश डिश के साथ, मतलब फूड के साथ, वो ये है कि जो है इसका स्टाइल सर्व करने का, इसका जो एक खेलने का वो है, वो एंटरटेनमेंट जो है वो इसके साथ एक जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी मशहूर होती है। बच्चे ख़वातीन ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कि माशाल्लाह पूरा पंडाल भर चुका है, और जब अपना टर्किश फूड फेस्टिवल जो ज़ैबिस में हो रहा है, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस भी है। आप आइसक्रीम के हवाले से बताएं कि आइसक्रीम के हवाले से लोगों का कैसा रिस्पांस है? अल्हम्दुलिल्लाह आइसक्रीम के हवाले से भी लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। लोगों को पाकिस्तान में, कराची में, ख़ासतौर पे यहाँ ज़ैबिस यूनिवर्सिटी में लोगों को एक नया फ्लेवर, नया टेस्ट, नई आइसक्रीम खाने को मिलती है और लोग इसको एंजॉय करते हैं। आमतौर पे लोगों की फितरत होती है कि लोग जो है नई चीज़ को एंजॉय करते हैं और मतलब नई चीज़ को ट्राई ज़रूर करते हैं, फिर जाहिर सी बात है कि उनको अच्छा लगता है तो वो पैसे उनके वसूल हो जाते हैं। तो ये ऐसा है। थैंक यू सो मच। और कोई मैसेज देना चाहें यहाँ की पब्लिक के लिए? बस मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं अच्छी बात है, एंजॉय करें, और टर्किश फैमिलीज़ वगैरह आई हुई हैं यहाँ पे, उनको हम लोग जो एंटरटेन कर रहे हैं, और अल्लाह करे वो लोग खुश रहें यहाँ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, जज़ाक। सो व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टर्किश फूड स्टॉल पर, और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी अल्हम्दुलिल्लाह टर्किश हैं। बताते खुद वो फैमिली यहाँ पर आई हुई है और अपने बेहतरीन खानों से हमें लुत्फ कर रहे हैं। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। योर गुड नेम? Yes. योर गुड नेम? Gülizar. अच्छा मैम, can you describe these foods? What exactly these foods names, and what ingredients are utilized for these foods? Okay, let me start from sarma. Sarma. This is, we call sarma. Yes, it's traditional Turkish food. It's grape leaves, so it's a bit sour. Grape leaves and inside rice pilau. So some spices and it's becoming like this sarma. So basically this is a bit close to Pakistan taste. Pakistan people like this because it has rice pilau inside. You have pan, right? We have grape leaves. Okay, it's a alternate of pan, Yeah. but it's a very kind of जैसे हम बोलते हैं ना, खट्टा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। It's a very juicy and the taste is very rich. Just like जैसे हम टैकूस के अंदर टेस्ट चेक करते हैं, हमारा अचार होता है, उस तरह का टेस्ट है, मगर एंड में जो पत्ता आ रहा है वो वाकई पान की तरह कुछ फील दे रहा है। एनीवेज, बात करते हैं आगे। एंड अनदर वन, This one kalbura bastı. It's this is also famous Turkish dessert. Its ingredients are there's like Okay. standard butter, Butter
olive oil, yogurt, egg, baking powder, salmonella, and flour. Yes, it's a Amazing. Ottoman dessert also. Ma'am, can you? We will definitely test it after that. But Okay. can you tell me, this is like a gajar ka halwa? I don't know exactly what is this. It's carrot, but it's not gajar ka halwa. Okay. This is not sweet. This is salty. This Salty? Is salty. Yes. First Yogurt. time आप गाजर का हलवा salty देख रहे हैं भाई. गाजर का हलवा नहीं है, yogurt salad है. Okay. There's yogurt, akhrot, That's carrot, and salt and garlic. Wow. This. It's you want like to taste? so much creamy and same texture like our gajar ka halwa. Uh-huh. And this one, This one is also vegan salad of Turkish cuisine. vegan salado. Vegan salad, a kind of vegan salad of Turkish cuisine. We call this kısır. So it has bulgur. Bulgur is not available in Pakistan. Bulgur Okay. is wheat, a kind of wheat. It's and it has other fresh sabzi. It's a like purely green onion. imported food. Only bulgur is imported. Okay. Other things, green sabzi, it's The available here. main ingredient is exactly imported from the Turkey. Main, yes, bulgur is imported from Turkey. It's not available over And here. this one, And this one is special cookie. okay. We cook this only on Islamic days, like Mevlid, Barat Okay. Day, Shebi Barat. On those days we cook this. This is simit, traditional. Yeah. This is small form of that simit. तिल जिसे हम कहते हैं. Anyways, it's a very precious sort of a food It's for very the precious. Yes, it's only Islamic days you can see this. on the auspicious events only. That's great, and it's taste like a It's like sesame and cookie, like a salty cookie with okay. sesame. Because Pakistanis love to have a cookies Yes, with the with chocolate dudh and This is very good with dudh bade. okay, that's great. So how do you find the response of audience, and it's happening first time in a university, this sort of a event? What would you love to say about this? I would like to say, actually, like my husband is Pakistani, so somehow I know what kind of food from Turkish cuisine Pakistani people like. So I know that they like kısır from my in-laws. So I just made this, and its response is very good. It is like as I expected. People really like this sarma, this carrot salad, kısır, and cookie. So response Your in-laws are Pakistani. So what exactly food you love to have in a Pakistan? What exactly food you love in Pakistan? Like people used to love kadai, biryani, and payas and something else. I like biryani, Okay. and also there is one you guys are making from, I don't remember the name, but chicken and cheese, chicken and paneer together. Okay. I don't know its name. It's and what do you call? Mostly desserts I like actually. Ras malai and kheer, and what else? Like Gajar ka halwa. gajar ka halwa. Yes. I like these. Mostly dessert I like, but I like biryani also. And Any message for the peoples of Pakistan and the youth of Pakistan? youth of Pakistan. Youth of Pakistan. So youth population is too much over here. So they should take advantage of this thing. They should study. They should work. Even if they are going abroad, they should come back to their country, and they should help their country to improve. It was a very nice talking to you. Thank you so much for your time. Thank you. सो वीवर्स मैं एक और स्टॉल पे मौजूद हूँ, क्योंकि मैंने आइसक्रीम की बात बता दी और वहाँ के ट्रेडिशनल फूड्स की बात बता दी, और सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे यहाँ बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो हमारे केक का बड़ा इस्तेमाल होता है, और केक हमारे यहाँ एक खुशी का एक साइन भी कहा जाता है. एंड देन अगेन टर्किश आइसक्रीम खाने के बाद बंदा नाचता है, और टर्किश केक खाने के बाद किस तरह सेलिब्रेट करता है उस पर बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम मैम. Alaikum salam. How are you doing? Alhamdulillah, thank you. Your good name? My name is Gizem. Ma'am, what exactly is this? What kind of a cakes are you just like introducing to our Pakistanis? Actually, all are sweet. This is traditional Turkish sweet, and we put inside the semolina and hashash. We call hashash. Hashash. Yeah, I bring this item from Turkey, Okay. and we add sherbet as well. This one marble cake. Yes. My son made it, and this one also marble cake. Marble cake, and this one chocolate cookies. What are the specialties of these cakes? Most often we used to have chocolate cakes and just like a red velvet cake and other cakes. So what exactly kind of a taste of these cakes, and what exactly the USP of these cakes? Speciality of this cake? एक्चुअली इस वजह से ये मार्बल केक टर्किश में मशहूर है, क्योंकि इसमें ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मतलब निशान, जो कि हम मार्बल केक जिसे कहा जाता है. Okay. तो इस वजह से ये इसमें चॉकलेट यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चॉकलेट यूज़ होती है, शुगर, जिसकी वजह से फिर हम लोग इसे ना टर्किश उससे रिलेटेड करते हैं. और दूसरा कि
इसके डिज़ाइन की वजह से ये मार्बल केक लाए जाते हैं, और दूसरा पाकिस्तान में ये नहीं होता है, क्योंकि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि पाकिस्तान में भी होती है, तुर्की में भी होती है, लेकिन चेंजेस होते हैं, मतलब हर कोई बनाते हैं लेकिन चेंज अलग अलग मतलब आता है, टेस्ट आता अच्छा, है। जैसे मैम ने कहा कि इसमें टर्किश इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसका टेस्ट किस तरह डिफरेंट होता है? एक्चुअली टर्किश इंग्रेडिएंट्स क्योंकि मतलब साल्टिश थोड़ा खाते हैं, मैंने इनके खानों में देखा है, जो मीठा खाते हैं तो ये थोड़ा साल्टी खाते हैं। जी। जैसे इनके हलवा वगैरह भी देखा तो वो साल्टिश था थोड़ा, तो इनके केक भी साल्टिश होते हैं? जी होते हैं, लेकिन मार्बल केक में ये होता है कि थोड़ा कम होता है, चॉकलेट ज़्यादा यूज़ होता है, और जो ये वाला है इसमें सॉल्टी ज़्यादा होता है, चॉकलेट कम यूज़ होता है। ओके, कैसे देख रही हैं आज का इवेंट आप? मुझे आज का इवेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और दूसरा हम अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करें, पाकतुक मारिफ को, और दूसरा ये है कि मैं चाह रही हूँ कि ना और भी स्टूडेंट्स जो कि पाकतुक मारिफ में नहीं पढ़ रहे वो भी यहाँ पर आके पढ़े, कि उन्हें भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने हाथों से ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि उन्होंने कभी बनाई नहीं है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। यू आर वेलकम। पे मौजूद हूँ जहाँ पर मुझे सैलेड, ब्रेड और बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक कप को देख रहा हूँ तो मुझे कॉफ़ी का टेक्सचर भी फील हो रहा है। बात करेंगे इन बच्चों से कि ये टर्किश खाने क्या है, किस कदर है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अलीहा। अलीहा, मुझे ये बताओ कि ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये भी मुझे नज़र आ रहा है हमारे यहाँ ब्रेड इस्तेमाल होती है, गार्लिक ब्रेड इस तरह का ही टेक्सचर दे रही होती है। इस टब के अंदर क्या है? ये बड़े प्यारे प्यारे से मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें बंद गोभी के कुछ फूल चीज़ें रोस्ट जैसे कवर्ड की गई है, और अंदर जो है ना जैसे हम कोफ्ता खाते हैं, कोफ्ते की तरह कोई चीज़ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये जी इस तरह का कुछ है और बहुत ही देखने में बहुत प्यारा है। एनीवेज, हमें आप बताएं कि क्या क्या है। ये लेंटन सूप है, और ये ब्रेड है, ये प्लेन ब्रेड है, गार्लिक ब्रेड नहीं है। Okay. और ये सैलेड है, ये पोटैटो सैलेड है। ओके, और ये भी बड़ी फैसिनेटिंग सी चीज़ है। एनीवेज, ये सूप किस तरह होता है? अच्छा, इसका ये सूप हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं बनता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादा सूप बनता है वो अलग तरीके से बनता है, और ये सूप एक दाल का सूप है। अच्छा, दाल का सूप है ये? जी, और ये इसका दाल। टेक्सचर तो बड़ा प्यारा सा कॉफ़ी सा आ रहा है, तो मतलब इसको क्या करना पड़ता है, किस तरह, कुछ रेसिपी आप बता सकती हैं हमें? ये थोड़ा गाढ़ा होता है क्योंकि इसमें दाल होता ही है। इसमें हम ज़्यादा स्पाइसेस तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, और एंड में सिर्फ और सिर्फ गार्निश कर देते हैं थोड़ा ब्लैक पेपर। अच्छा, इसका टेस्ट कैसा होता है? किस तरह की दाल इस्तेमाल होती है इसमें? जो है मूंग मसूर की दाल, आप ऐसे कोई दाल इस्तेमाल हम कर लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी फूड को विटनेस कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है और किस तरह देख रही है ये इवेंट? मैं तो जो है जिनको भी दे रही हूँ वो सूप पी के यही कहते हैं कि सूप मज़ेदार है, क्योंकि ये सूप एक नया सूप भी है दाल की वजह से, क्योंकि दाल का सूप यहाँ पे ज़्यादा नहीं पिया जाता। दैट्स ग्रेट। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप पाकिस्तान के लोगों को, स्टूडेंट्स को? कि हमें भी ऐसी चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए। इस हिस्सा लेने से हमें एक तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, और सिर्फ हम यहाँ पे खाना बना के नहीं लाए, हमने नई नई चीज़ें ट्राई की और नई नई रेसिपियाँ भी सीखी हैं जो हमें आगे जाके बहुत काम आएंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। सो व्यूअर्स, आपने पाकिस्तान में बहुत सारी फूड्स खाई है, और बहुत सारी फूड्स के बारे में हम कहते हैं कि यार मज़ा आ गया। और हमारे यहाँ आजकल बहुत सी चीज़ों में एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ फैमिलीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है, वो होता है पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर हम आएंगे पिज़्ज़ा लूका के ऊपर और देखते हैं कि ये टर्किश पिज़्ज़ा क्या है, किस कदर है, और उसके लिए हम इन रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम सर? अनिल नाम है, अनिल चौहान। अनिल चौहान साहब, मुझे ये बताएं कि ये पिज़्ज़ा लूका क्या है और टर्किश फूड में इसकी क्या स्पेशलिटी है? सर, पिज़्ज़ा लोका जो बेसिकली ये है इटालियन है। Okay. इसमें हम है ना थिन क्रस्ट डो बनाते हैं, मगर तुर्किश के लिए हमने सिर्फ स्पेशली हमने ये रेडी किया है। तुर्किश पीटा कहते हैं इसको, पीटा बिल्कुल कहते हैं सामने नजर आ चीज़ें। और ये पीटा एक गोलाई में भी होता है, राउंड शेप भी होता है, और एक ये किस्ती शेप भी कहते हैं इसको, पीटा बोलते हैं इसको। इसमें चीज़ में भी है, मीट में भी है, और चीज़ मीट में भी है। ये 3 फ्लेवर होते हैं इसके अंदर, जिसमें वो लाइक करें तो हम बना के देते हैं, मगर ये ओनली कच्चा मीट लगाया जाता है इसमें, बेक उसी टाइम होता है जब लाइव बनाते हैं हम। अच्छा, इसकी टेस्ट कैसी होती है? जैसे रूटीन पिज़्ज़ा में हम टिक्का पिज़्ज़ा, चिकन फजीता, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, इनकी टेस्ट कैसी होती है? टेस्ट ऐसी होती है, बिल्कुल ये स्पाइसी नहीं होता, ये लाइट स्पाइस होता है, मतलब कि इसके ऊपर चिली भी नहीं डाल सकते हम ऊपर से। इसके अंदर सारी हर्ब्स डली हुई है, जैसे ओरिगानो, बेसल, और इसके अंदर सर बेसिकली जो मीट बनाया गया ना, इसका मीट है ना हमने खुद स्पेशली बनाया है, कीमा किया हुआ है, 2 टाइम का कीमा है इसके अंदर। और इसके अंदर हमने
अनियन, सही, ग्रीन सही, सही, पेपर, ये सब मिक्स किया हुआ है, वेजिटेबल्स के अंदर मिक्स है। सही सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं जी हाँ टर्किश फूड फेस्टिवल रैबिस यूनिवर्सिटी के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की और कुछ लोग हमारे साथ मिले, और इस वक्त हमारे साथ एक गेस्ट है जो इंटीरियर सेल से ताल्लुक़ रखती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम योर गुड नेम? डॉक्टर तहसीन फातिमा मियानो। माशाल्लाह। मैम डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आज इस इवेंट पे आने का इत्तेफाक कैसा हुआ? जी एक्चुअली हम तुर्किश अलमनाई से रिजेंबल है, क्योंकि मेरी पीएचडी टर्की से ना, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, वो ये कि हम पाकिस्तानी और स्पेशली सिंधी जो है ना, हम खाते पीते घरानों से तो होते हैं और हम तीखा खाते, चटपटा खाते हैं। इवन सिंध की शिकारपुर की अचार बहुत मशहूर है, या हमारे यहाँ सिंध में केरियाँ होती हैं वो भी चटपटी होती है, सारी चीज़ें। टर्की में आप जब गए तो वहाँ के खाने आपको कैसे लगे? क्योंकि मैंने अब यहाँ पर एक्सपीरियंस किया, मेरे टर्की जाना तो हुआ नहीं है, मगर यहाँ पर मैंने जितना भी खाना खाया है, उनके बिस्किट भी थोड़े से साल्टिश हैं, उनके डिज़र्ट्स भी थोड़े से साल्टिश हैं, तीखा वो बिल्कुल नहीं खाते। बहुत सी डिफरेंट टेस्ट वाली चीज़ें हैं इनकी आइसक्रीम ऑब्वियसली ज़बरदस्त, इनके केक्स बड़े ज़बरदस्त, मगर केक के अंदर भी नमक का इस्तेमाल ज़्यादा था। तो आप जब वहाँ गई तो आपको वहाँ का टेस्ट कैसा फील हुआ? कितना टाइम लगा आपको उनके टेस्ट में एडजस्ट होने के लिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात की है आपने। जो ये हमारा आज का इवेंट है, तो इसमें आपने देखे ना टर्किश फूड फेस्टिवल, तो वैरायटी ऑफ फूड है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे कंज्यूमर होते हैं उनका टेस्ट डिफरेंट होता है। किसी को साल्टिश पसंद है, किसी को स्वीट पसंद है, किसी को जो है स्पाइसी पसंद है, किसी को अचार पसंद है। तो तुर्की में जो है पिकल्स ज़्यादा बनते हैं, जिसे कहते हैं तिरशू। उनके जो अचार होते हैं वो ज़्यादातर हम तो बनाते हैं, जैसे आपने शिकारपुर का जिक्र किया, तो शिकारपुर में ऑयल का बनता है, तो यहाँ पर ये विनेगर का बनाते हैं। और दूसरा आप इनका आज डोलमा बड़ा अच्छा था, टेस्टी था, वो भी देखें थोड़ा स्पाइसी होता है। तो इनके कुछ जो होते हैं ना, ये तुर्किश के हर इसमें सिटीज़ में इनके जो फूड है वो डिफरेंट उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट है, और मुझे कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई, क्योंकि आई एम एडजस्टेड विद एवरी टेस्ट ऑफ फूड, तो हम इंजॉय करते हैं इनके फूड्स को। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने जैसे बताया कि उनके तकरीबन शहरों में मुख्तलिफ टेस्ट पाए जाते हैं, आपको वहाँ के किस शहर की कौन सी चीज़ ज़्यादा टेस्टी लगी, या ऐसा लगा कि आपने वहाँ पे वो चीज़ खाई आपको, जैसे हम सिंधी में बोलते हैं ना, अबाना याद अच्छी हुआ, मतलब अपने घरों में जैसे मैंने देखा इनके हलवे जो हैं, जैसे गाजर का हलवा, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमारी ट्रेडिशनल फूड की तरह ही दिखती हैं और टेस्ट में भी रिजेंबल है। तो कोई ऐसी फूड जो आपने वहाँ खाई और आपको अपने गाँव की या अपने लोगों की या अपने वालिदैन की या आपके घर में जो खाना बनाते हैं उनकी याद आ गई हो? हाँ, इनका जो था पिद्दे है वो रिजेंबल करता है हमारे फूड के हवाले से, और दूसरे इनके अचार जो है वो भी हमारे फूड से रिलेटेड है, और उनके पुलाव जो होता है वो भी हमसे रिलेटेड होता है। तो मुझे ऐसा सच देखें कितने भी फूड्स हों, उनका बनाने का तरीका, मेथड चेंज होता है, लेकिन फूड जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो सेम होते हैं। और हम जब आइसक्रीम की बात करते हैं तो कारामानमराश जो है टर्की का एक बड़ा फेमस सिटी है, जिसकी आइसक्रीम जो है सारे तुर्की में मशहूर है, और वो बहुत जो है ना लोग वहाँ से जाते हैं, बहुत फेमस है। अदाना के कबाब जो है वो भी मशहूर है, और जो है इनका बकलावा जो है स्वीट, वो तो मुझे बहुत पसंद है, और वो बड़ा इनका यूनिक सा है, और अमेजिंग टेस्ट है हर सिटी के फूड के ना। अच्छा, बकलावा जैसे आप बता रही हैं, तो उसका कहीं पाकिस्तान में ऐसी कोई मिठाई उससे रिजेम्बलेंस करती है? बकलावा का भी मेरे ख्याल में मैंने कुछ जगहों पर देखा है, लेकिन जो उनकी स्पेशलिटी है वो हमारे पास नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने देखा है टर्किश स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर आए हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, वो कुछ ना कुछ बनाना जानते हैं टर्किश का। तो आपको टर्किश कौन सी डिश बनाना आती है जो आपने वहाँ सीखी? हाँ, मैंने मजमेक शोरबा जो था, इनका जो दाल का सूप बनता है वो बहुत अच्छा है, और इनके पोटैटोज़ होते हैं जो चीज़ में ओवन बेक करते हैं वो अच्छे हैं, पुलाव है इनका, और दूसरे जो है इनकी सैलेड्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, ख़वातीन का असल कहते हैं ना, ख़वातीन की जो खूबसूरती होती है उनकी कुकिंग में नज़र आ रही होती है। तो आप जब टर्की गई तो आपको कभी चांस मिला कि आप उनको पाकिस्तानी खाने बना के खिलाएं, और कौन से खाने उन्होंने पाकिस्तान के आपके हाथ के बने हुए खाए और उनको मज़ा आया? हाँ, ये तो बहुत हमें एक चांस मिला, क्योंकि जब हमारी टर्किश प्रोफेसर की फैमिली थी तो वो बहुत लाइक करती थी खानों को ना, तो वो वेजिटेरियन थे, तो दाल और रोटी जो है उनको बहुत पसंद थी, पाकिस्तानी चाय जो है वो उनको बहुत पसंद थी, और ख़ास तौर पर जो है सवैयाँ मैं यहाँ से लेकर गई थी, जो हमने सवैयाँ वहाँ पर बनाई थी, उन्होंने बहुत वो लाइक किए थे। मैम थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और ऑल द वे फ्रॉम टंडोजाम से आप यहाँ आई, हमारे इस इवेंट को आपने ग्रेस किया। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Enjoy the food festival. थैंक